रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति का ऐलान करते हुए कहा कि ब्याज दरों यानी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो पहले की तरह 4% पर बरकरार है। देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने शुक्रवार को नीतिगत दर को लगातार 11वीं बार एक जैसा रखते हुए इसे 4% पर कायम रखने का फैसला किया है। रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर ही रखा गया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि बोर्ड की बैठक में सभी सदस्यों ने इस बात पर सहमति जताई कि ब्याज दरों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। Against this backdrop, the Monetary Policy Committee, that is MPC, met on 6th, 7th and 8th April, and based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4%. The MPC also decided unanimously to remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. The marginal standing facility, that is MSF rate and bank rate, remain unchanged at 4.25%. Further, it has been decided by the Reserve Bank to restore the width of the liquidity adjustment facilities, that is the LAF, LAF, that is the LAF corridor, to 50 basis points, 50 to 50 basis points, the position that prevailed before the pandemic. The floor of the corridor will now be provided by the newly instituted Standing Deposit Facility, SDF, which will be placed 25 basis points below the repo rate, that is at 3.75%. खास बात यह है कि विकास दर की रफ्तार में संशोधन किया गया है। पहले विकास दर 7.8% रहने की बात कही गई थी, जिसे घटाकर 7.2% कर दिया गया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था महामारी की वजह से पैदा हुई सुस्ती से अब धीरे धीरे उबर रही है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति बढ़कर 5.7% पर पहुंच सकती है। Inflation is now projected to be higher and growth lower than the assessment during February. Economic activity, although recovering, is barely above its pre-pandemic level. Against this backdrop, the MPC decided to retain the repo rate at 4%. It also decided to remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. I would now like to provide our assessment of growth and inflation. And first, I would take up growth. According to the second advance estimates released by the National Statistics Office, NSO, on February 28, real GDP rose by 8.9% in 21-22. Private consumption and fixed investment, key drivers of the domestic demand, however, remain subdued, with these two components being only 1.2% and 2% respectively above their pre-pandemic levels. On the supply side, contact-intensive services still trail the 2019-20 level. Nevertheless, the Indian economy is steadily reviving from its pandemic-induced contraction. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति का ऐलान करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था बड़े विदेशी मुद्रा भंडार की वजह से संतोषजनक स्थिति में है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था के बचाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। महंगाई से जूझ रहे देशवासियों को भले ही ब्याज दरें घटाए जाने की राहत नहीं मिल पाई है, लेकिन ब्याज दरें नहीं बढ़ाकर भी उन्हें राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक महंत की हेट स्पीच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स कई तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। अधिकांश यूजर्स वायरल वीडियो पर कार्रवाई की मांग करते दिखे। दावा किया जाता है कि यह वीडियो सीतापुर जिले की एक मस्जिद के बाहर का है। वीडियो 2 अप्रैल का बताया जा रहा है। इस वायरल वीडियो पर पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। दरअसल मस्जिद के बाहर एक सभा को संबोधित करने के दौरान एक हिंदू महंत ने मुस्लिम महिलाओं के लिए असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया। वो मुस्लिम महिलाओं को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते सुने जा सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई मुस्लिम इलाके की लड़की को परेशान करता है तो वो मुस्लिम महिलाओं का अपहरण कर लेगा और सार्वजनिक रूप से उसकी इज्जत से खेलेगा।
महंत की बातों पर मौके पर मौजूद लोग जय श्री राम के नारे लगाते भी सुनाई देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि वीडियो में दिख रहे महंत का नाम बजरंग दास मुनि है। वो खैराबाद शहर के महर्षि लक्ष्मण दास उदासीन आश्रम के महंत हैं। नवरात्रि और हिंदू नव वर्ष के मौके पर आयोजित जुलूस में बजरंग दास ने विवादित बयान दिया। इसी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मामले में सीतापुर पुलिस ने भी बयान दिया है। सीतापुर पुलिस का कहना है कि खैराबाद थाना में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध समुचित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यूजर्स वायरल वीडियो को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। मध्य प्रदेश के बेहद चर्चित व्यापम घोटाले के पेपर लीक मामले में विसिल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय को मध्य प्रदेश पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उन्हें भोपाल लाया जाएगा। आपको बता दें, इस बारे में जानकारी डॉक्टर आनंद राय ने खुद सोशल मीडिया से दी है। साथ ही उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों से भोपाल पहुंचने की अपील भी की है। आनंद राय व्यापम घोटाले को बेनकाब करने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। हाल ही में इनके द्वारा भेजा गया MPTET के प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट काफ़ी वायरल हुआ था। बता दें, सोशल मीडिया पर डॉक्टर आनंद राय ने अपनी गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए लिखा, मुझे दिल्ली के होटल काबली से क्राइम ब्रांच भोपाल ने हिरासत में लिया है। सभी कार्यकर्ता शुभचिंतक भोपाल पहुंचे। आपको जानकारी के लिए बता दें, कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था, जिसमें लक्ष्मण सिंह का नाम दिख रहा था। इसी स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया पर डॉक्टर आनंद राय और कांग्रेस के नेता के मिश्रा ने पोस्ट किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में OSD लक्ष्मण सिंह मरकाम ने 25 मार्च को राय के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति थाने में FIR दर्ज कराई थी और बाद में पूरा मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था। आनंद राय ने TET के वायरल स्क्रीनशॉट को लेकर मरकाम पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि स्क्रीनशॉट मरकाम के मोबाइल फ़ोन में कैसे आया। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने भी अनियमितताओं के आरोप लगाए हुए थे। इसे रद्द करने की मांग की जा रही थी। अभ्यर्थियों ने दावा किया था कि परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए उनसे पैसे की मांग की गई थी। बता दें कि मध्य प्रदेश में करोड़ों रुपए के व्यापम घोटाला देश भर में काफ़ी चर्चित हुआ था। भर्ती में घोटाला और संदिग्ध मौतों के चलते देश भर में व्यापक सुर्खियां बटोरी थी। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इससे जुड़े कई मामले अभी भी अदालत में चल रहे हैं। देश में कोरोना के मामले बढ़ने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है, जहां पिछले कई दिनों से भारत में कोरोना के मामलों में गिरावट का दौर जारी रहा, जिस वजह से यहां पाबंदियां भी हटाई गई। लेकिन पिछले 3 दिनों से एक बार फिर मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 3 दिनों से कोरोना के मामले 1000 के ऊपर बने हुए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय रोजाना कोरोना के आंकड़े शेयर करता है। उसी के मुताबिक रोजाना हम भी आपको कोरोना अपडेट देते हैं। कोरोना अपडेट में हम आपको रोजाना ये जानकारी देते हैं कि देश में कितने नए मामले दर्ज किए गए, कितनी मौतें हुई, कितनी वैक्सीन लगाई गई, कितने टेस्ट किए गए, कितने मरीज ठीक हुए हैं और देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना का क्या हाल है। तो शुरू करते हैं आज का अपडेट। आज कोरोना के 1109 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ भारत में नए कोविड-19 केसों में 7.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,30,33,067 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 43 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा अब 5,21,573 पर पहुंच गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 1213 मरीज ठीक हुए, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,25,02,000 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस अब 15,000 से नीचे पहुंच चुके हैं। अब एक्टिव केस 11,492 हैं। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर भी काफी जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 16,80,118 वैक्सीन की डोज लोगों को लगाई गई और अब तक वैक्सीन की कुल 185,38,68,663 करोड़ डोज लोगों को लग चुकी है। देश में अब 12 साल से ऊपर उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग
बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 4,53,582 टेस्ट किए गए हैं और अब तक देश में लगभग 79 करोड़ 30 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अगर राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बुधवार के आंकड़ों के मुताबिक केरल में 291 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया और 36 मरीजों की मौत दर्ज हुई। कर्नाटक में 63 मामले सामने आए और कोई मौत नहीं हुई। वहीं तमिलनाडु में 26 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और किसी भी मरीज की मौत दर्ज नहीं हुई। नए मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते दिन 128 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया और 6 मरीजों को जान गंवानी पड़ी। इसी बीच इस खबर ने भी डरा दिया है कि नए कोविड-19 वेरिएंट ओमिक्रॉन XE का पहला मामला मुंबई में पाया गया था। हालांकि बाद में स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मरीज XE वेरिएंट से संक्रमित नहीं था। फिलहाल अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि भारत में XE का मामला सामने आया है या नहीं। रूस और यूक्रेन के बीच टकराव चरम पर है। पूरी दुनिया की निगाहें इस संकट पर टिकी हुई हैं। रूस यूक्रेन जंग के 43 दिन पूरे हो चुके हैं। आज यूक्रेन पर रूसी हमले का 44वां दिन है। इस युद्ध में दोनों ही देशों को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन भी रूसी सेना के सामने अब तक झुका नहीं। रूस की विशाल सेना के सामने वो डटकर मुकाबला कर रहा है। इसी बीच अमेरिका से अब यूक्रेन को ऐसा हथियार मिल गया है जिससे वो रूसी सेना के होश उड़ा रहा है। भले ही इस युद्ध में अमेरिका यूक्रेन की मदद सेना भेजकर नहीं कर पा रहा, लेकिन अमेरिका रूस को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन को अपनी पूरी मदद दे रहा है। एक तरफ जहां रूस को सबक सिखाने के लिए अमेरिका लगातार रूस पर कई प्रतिबंध लगा चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका यूक्रेन को इस युद्ध में लड़ने के लिए कई ऐसे हाईटेक हथियार दे रहा है जो रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब हम आपको अमेरिका के एक ऐसे ही हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे रूसी सेना काफी डरी हुई है। ये हथियार दुश्मनों को ढूंढ कर अपना निशाना बनाता है और इसी की मदद से यूक्रेन रूसी सैनिकों को जमकर सबक सिखा रहा है। इस हथियार का नाम है स्विच ब्लेड ड्रोन्स। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को अभी तक 100 स्विच ब्लेड ड्रोन्स दिए हैं। देखने में ये हथियार भले ही साइज में छोटा हो, लेकिन जब ये हमला करता है या किसी चीज से टकराता है तो ऐसा विस्फोट करता है कि दुश्मनों के परखच्चे उड़ जाते हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन्स, इन्हें कामिकेज ड्रोन्स भी कहा जाता है। अब हम आपको बताते हैं इस हथियार की खासियत। सबसे पहले तो जब इन्हें उड़ाते हैं तो ये अपने पंख अपनी तय हाइट पर जाकर खोलते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत हथियार में लगे इसके कैमरे हैं जो दुश्मनों और उनकी हर एक हलचल की जानकारी को ट्रैक करते हैं। इसमें लगे कैमरों से दुश्मनों के अड्डों का पूरा वीडियो दिखता है। ये घने जंगलों, पहाड़ों और इमारतों में छुपे हुए दुश्मनों को आसानी से ढूंढ लेते हैं और उसके बाद ये अपने टारगेट से टकराते हैं और विस्फोट करते हैं। ऐसे में दुश्मन को बचने का कोई मौका ही नहीं मिलता। इसे रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। इसका वजन करीब 23 किलोग्राम होता है। इसकी उड़ने की रेंज 40 किलोमीटर तक होती है और कमांड मिलते ही ये 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मनों पर अटैक करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।